jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ غازی ناول یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا کسی مرد کی زبان سے اپنے لیے اظہار محبت اور اس کے حسن کی تعریف سننا ہے۔ میں شعروں کا مطلب سناتا گیا اور عائشہ کے ہاتھ کی میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہونے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو عائشہ، میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات کسی بری طرح سے حائل ہیں۔ تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی ہو تو کل دوسرے کی باہوں میں، کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوستوں کے ہمراہ۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن ہے؟ عائشہ کی آنکھیں اپنی حقیقت کی تلخی برداشت نہ کر سکیں اور چھلکنے لگیں۔ میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی، ونود جی، برسوں سے میرا ضمیر جس بات پر مجھے قائل نہ کر سکا، آپ نے چند منٹ میں وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یقین جانیے میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات کے وقت سے ہی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی، بریگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کو محض اس لیے ملوایا کہ آپ میں جذبہ رقابت پیدا ہو، لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب میں آپ کو اور سچائی کو سمجھ چکی ہوں۔ اگر آپ میرے ماضی کو فراموش کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آج سے بلکہ ابھی سے ہی آپ ایک نئی اور بدلی ہوئی عائشہ کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا، عائشہ، یہ سب کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل، اور پھر تم شادی شدہ ہو، کیا تمہیں جے چند اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ عائشہ کہنے لگی، یہی تو بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا تھا۔ جے چند نے میس کے بریگیڈیئر سے، جس کے لڑکے سے میں نے آپ کو ملوایا تھا، ایک بہت بڑا ٹھیکہ انتہائی کم ریٹ پر حاصل کیا ہے اور بریگیڈیئر کو 25 لاکھ روپے رشوت دی ہے، اور اس ٹھیکے کے حصول میں ایک منسٹر بھی شامل ہے جس کا ٹھیکے سے حاصل ہونے والے منافع میں آدھا حصہ ہے۔ میرے پوچھنے پر عائشہ نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے جس پر اس نے جے چند، بریگیڈیئر اور منسٹر کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کے سلسلے میں بریگیڈیئر، منسٹر اور جے چند کی ملاقاتیں جے چند کے عالی شان بنگلے میں ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، عائشہ، تم نے کل مجھے میری بہتری کا کہا تھا، بھلا اس ٹھیکے کے اندرونی حالات جاننے سے میری کیا بہتری ہوگی؟ عائشہ نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، کیا میں آپ کی بہتری نہیں؟ اور میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ عائشہ نے کہا، اس ریکارڈ گفتگو کی وجہ سے جے چند نہ صرف مجھے آزاد کر دے گا بلکہ میری زبان بند رکھنے کے عوض بھاری رقم بھی ادا کرے گا، اور پھر آپ کے ساتھ میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ کو کیا جواب دوں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، عائشہ، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو وہ کیسٹ مجھے سنوا سکتی ہو۔ عائشہ نے فوراً ہی اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک درمیانے سائز کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دیا اور کہا، یہ ٹیپ ریکارڈر بھی آپ کا اور کیسٹ بھی آپ کی۔ اب تو میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ ادھر میری حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نامعلوم انداز میں عائشہ نے مجھ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی تھیں اور اسے میری حقیقت کا ذرا بھر علم نہ تھا۔ میں نے عائشہ کو کہا کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے میں احتیاط برتے اور اگر کبھی اتفاقاً اس کا اپنے شوہر کے ہمراہ میرا آمنا سامنا ہو جائے تو مجھے نظر انداز کرے۔ جواباً عائشہ نے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر یا کسی دوسرے کے ہمراہ کبھی باہر نہ جائے گی، لیکن مجھے ہر روز فون کرے گی، اور یہ کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن اسے ضرور ملوں گا۔ کھانا تو ہم کبھی کا کھا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے پہلے عائشہ باہر نکلی۔ چند منٹ بعد میں باہر نکلا اور ٹیکسی لے کر اپنے ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہوٹل سے پوری تیاری سے نکلا تھا۔ پسٹل اور روپے میرے ساتھ تھے، ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم 2 ٹیکسیوں میں سرائے بیرم خان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم یشونت سے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بجائے چھپر ہوٹل میں انتظار کرنے کے، میں نے سوچا کہ اس علاقے میں گھوما جائے۔ ہم 2 کی ٹولیوں میں آگے پیچھے چل پڑے۔ یہ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ ایک دکان پر ہم نے ٹھنڈے دودھ کی بھری بوتلیں پیں اور پھر واپس لوٹ پڑے۔ پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنا مورچہ سنبھالا اور میرے ساتھی بھی ادھر ادھر مختلف جگہوں پر ڈٹ گئے اور یشونت کا انتظار ہونے لگا۔ اس انتظار کے دوران پولیس کی ایک گاڑی چھپر ہوٹل کے سامنے آ کر رکی اور پولیس اہلکاروں نے چائے پی۔ دہلی پولیس کے ماتحت عملے کے لوگ کمزور اور غربت کے مارے ہوئے نظر آتے تھے جو اس معمولی ہوٹل میں چائے پینے چلے آئے تھے۔
इनके जाने के थोड़ी देर बाद यशुनत आता दिखाई दिया। वो आज निस्बतन बेहतर हालत में था। इसके रेस्टोरेंट में पहुंचने के तकरीबन 10 मिनट बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। यशुनत कोने की टेबल पर बैठा था। इसने चाय का ऑर्डर दे रखा था। चाय पीते पीते इसने एक पैकेट मुझे थमा दिया। ये पैकेट इसने कपड़ों से निकाला था। मैंने भी वो पैकेट अपनी कमीज़ के अंदर डाल दिया और पैंट की जेब से रुपयों का लिफाफा निकाल कर इसे दिया। इसने धीरे से पूछा, कितने हैं? मैंने कहा 5,000। यशुनत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने लिफाफा जेब में डाल लिया। मैंने कहा, आज तो शम्मी के यहाँ जाओगे? वो छीप सा गया और धीमे से कहा, हाँ। मैंने कहा, पैकेट की वापसी पहले की तरह होगी? कहने लगा, मैं वहाँ 12 बजे तक रहूँगा। वापसी पर घर के पास अगर वापस मिल जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही मेरे देर से घर आने से नाला हैं और मेरे आने के बाद अगर कोई मुझे मिलने आए तो बहुत बुरा मानते हैं। राजदारी के लहजे में कहने लगा, औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े वालिदैन को यकसर नज़रअंदाज कर देती है और इनके इसी रवैये ने मुझे शम्मी के यहाँ जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक जाता हूँ। घर आता हूँ तो बच्चे बात नहीं करते। दफ्तर में दफ्तर का काम और घर में कोई बात तक न करे। ऐसा आखिर कब तक चल सकता है? मैंने उठते हुए यशुनत को थपकी दी और कहा कि ये बालाखाने आबाद करने में घर के अफराद का बड़ा दखल है, वरना कोई शख्स अपना रुपया और वक्त इन घुंघरुओं की आवाज़ में सर्फ ना करता। और ये जानते हुए भी कि इन बालाखानों वालियों की मुस्कुराहट, हंसी और अदाएं सब मसनूई होती हैं और ये सिर्फ रुपया बटोरने के ढंग हैं, कोई शख्स भी यूं बेवकूफ़ ना बनता। यशुनत के उठने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। मेरे साथियों को इल्म था कि ये मीटिंग मुख्तसर होगी। इन्होंने 2 टैक्सियां पहले ही रोक रखी थीं। हम इनमें सवार होकर साथियों के घर के करीब उतर गए। इस बार यशुनत के पैकेट में पहले की तरह टॉप, प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल की मोहरों वाले खतूत थे। हमने खतूत की कापियां बनानी शुरू कर दी। ये कुल 50 के करीब खत थे। मेरे साथी कापियां बनाते रहे और मैं पलंग पर दराज हो गया। आज मैं काफ़ी थक चुका था और रात को पैकेट वापस करने में मुझे भी जाना था। ये जुमे की रात थी और यशुनत से मैंने हफ्ते के रोज़ 3 बजे दोपहर गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में मिलने को कहा था, जहां इससे नया पैकेट वसूल करने के अलावा मैं इससे मुफस्सल बातचीत करना चाहता था और आइंदा पीर को मुझे पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट से मिलना था। रात को 11:30 बजे मैं कागजात का पैकेट लेकर यशुनत के घर की तरफ रवाना हुआ। हस्बे मामूल मेरा एक साथी मेरी हिफाजत के लिए मेरे हमरा था। पुरानी दिल्ली का ये इलाका हिंदुओं की आबादी का था और रात को जल्द ही बेरौनक हो जाता था। मैंने ये बात अच्छी तरह महसूस की थी कि भारतीय हिंदुओं की अक्सरियत सकूत, ढाका और अपनी कामयाबी पर बजाय खुश होने के पसमुर्दा थी। शेर को इन्होंने ज़ख्मी तो कर दिया था, लेकिन अब इस बात पर खौफजदा थे कि न जाने ज़ख्मी शेर कब अचानक बदला लेने के लिए हमला कर दे। भारतीय फ़ौज के महकमा जासूसी को भी इस वक्त तक यकीनन इल्म हो चुका था कि पाकिस्तान ने अपने जंगी कैदियों की कमी पूरी करने के लिए 4 नए डिवीज़न भी कायम कराए थे, जो जदीद तरीन असले से लैस थे। फिर पाकिस्तान की अफवाज को साबका मशरकी पाकिस्तान का भी अब दिफा नहीं करना था और इनकी तमाम तर ताकत मगरबी पाकिस्तान के दिफा पर मरकूज थी। दिल्ली में इस तरह की कई अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तान पूरी ताकत से दिल्ली पर हमला आवर होगा। पाकिस्तान की छाता बरदार फौज दिल्ली में उतारी जाएगी और अलैदगी पसंद सिख पाकिस्तान के लिए 5th कॉलमिस्ट का काम करेंगे। दिल्ली में हर इतवार को हवाई हमले से बचाव के सायरन टेस्ट किए जाते थे। भारतीय हिंदुओं का यही खौफ दूर करने के लिए भारतीय हुकूमत ने गालबन 74 में पाकिस्तानी सरहद के करीब एटमी धमाका किया था। हालांकि वो कई साल पहले एटमी ताकत बन चुका था और अपनी इस कामयाबी को पोशीदा रखे हुए था। भारतीय धमाका के फौरी बाद पाकिस्तान ने भी अपनी एटमी रिसर्च में तेज़ी पैदा कर दी और भारतीय अंदेशों के ऐन मुताबिक तेल की दौलत से मालामाल मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान के इस मामले में भरपूर मदद की, जिसमें नुमाया लिबिया था। कर्नल कज़ाफ़ी के अहकाम पर यूरेनियम 238 के खाम मवाद से भरे हुए 20 ट्रक जनूबी अफ्रीका में सफ़र के दौरान गायब कर दिए गए, जिन पर लदा खाम यूरेनियम पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। यह खबर आलमी ज़राए अबलाग ने बड़े ज़ोर शोर से जारी की और इसी की बुनियाद पर इस्लामी बम का शोशा छोड़ा गया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कतई तरदीद नहीं की। यही खौफ था जो भारतीय हिंदुओं में समा चुका था। पाकिस्तानी छाता बरदारों के खौफ से मिडिल क्लास हिंदू सरे शाम ही अपने घरों में दबक जाते थे। हम जब यशुनत के घर वाली सड़क पर पहुंचे तो आकात का टैक्सी और रक्षा नज़र आते थे।
दुकानें सब बंद थी। हमने इस बार टैक्सी नहीं छोड़ी और टैक्सी में ही बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद यशुनत की गली के सामने एक रक्षा रुका और इसमें से झूमता झुमाता यशुनत बरामद हुआ। मैं पैकेट लिए तेज़ी से इसके पीछे गया। शराब और शम्मी के रक्स ने इसका नशा दुबाला कर दिया था। वो झूमता और गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं इसकी मसनूई खुशी इससे छीनना नहीं चाहता था, लिहाजा इसे पैकेट थमाकर और अगले दिन गोलचा सिनेमा में मिलने की याद दहानी करवा कर वापस पलट आया। अपने साथी को इसके घर के पास उतारा और कनॉट पैलेस पर टैक्सी बदल कर अपने होटल आ गया। अगले रोज़ मैंने आशा की दी हुई कैसेट कई बार सुनी। इसमें 3 अफराद की आवाज़, गिलासों की खनक और कभी कभी आशा की आवाज़ भरी हुई थी। ठेके से मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू और बहस के मुतल्लिक अंदाजे बयान किए गए थे। सिर्फ एक बात ऐसी थी जिससे आशा की सच्चाई का सबूत मिलता था। गालिबन ब्रिगेडियर ने कहा था, सर ठेका तो मैं दे देता हूँ, लेकिन दूसरे ठेकेदारों ने शोर मचाया और बात इंक्वायरी तक पहुँच गई तो फिर क्या होगा। इसकी बात को दूसरी आवाज़ ने काट दिया, ब्रिगेडियर इसकी तो तुम चिंता ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है और जेचंद तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ठेका मिलते ही अदा कर देगा। मेरी तो जेचंद के साथ हिस्सेदारी है और जब तक ठेके का तमाम काम मुकम्मल नहीं हो जाता मुझे मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये गालिबन मिनिस्टर साहब ब्रिगेडियर को तसल्ली दे रहे थे। हमारे लिए ये कैसेट कारआमद साबित हो सकती थी, लेकिन इसलिए आशा का तावन ज़रूरी था। अगर वो हमें ठेके की तमाम तफसीलात मुहैया कर दे तो फिर जेचंद के अलावा ब्रिगेडियर और मिनिस्टर को भी हम काबू कर सकते थे। मैंने सोचा कि इस मामले पर आशा से आइंदा पीर या मंगल को फ़ोन पर बात करूंगा। पीर के दिन मुझे पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट से भी मिलना था, इसके बाद ही आशा को फ़ोन कर सकता था। मुझे ठेके के मामले में जल्दी नहीं थी क्योंकि ये अभी इब्तदाई मराहिल में था। ठीक 2 बजे मैं गोलचा सिनेमा चला गया। इस सिनेमा में मशहूर भारतीय फिल्म बॉबी नई रिलीज़ हुई थी और सिनेमा शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। गोलचा सिनेमा की बिल्डिंग में एक निहायत ही आला दर्जे का रेस्टोरेंट बना हुआ है। मुझे यशुनत से वहीं पर मिलना था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो यशुनत पहले ही एक टेबल पर कब्जा जमाए दिखाई दिया। कई किस्म के खाने इसके सामने पड़े थे। आज वो बहुत निखरा हुआ था। रस्मी अलैक्सलैक के बाद वो कहने लगा, घर वाले तो अक्सर दाल और सब्जी ही पकाते हैं। कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में जाकर मनपसंद खाना खाता हूँ या फिर शम्मी के यहाँ अच्छा खाना मिलता है। मैंने इसे छेड़ते हुए कहा, शम्मी के यहाँ का खाना तो यकीनन तुम्हें भाता होगा क्योंकि शम्मी का साथ इसे मजीद लजीज बना देता होगा। यशुनत कुछ छींप गया। अब चूंकि हम दोनों दोस्त बन चुके थे इसलिए वो बेतकल्फी से कहने लगा, शम्मी रात भी आपको पूछ रही थी, कभी इधर का भी चक्कर लगा लें। यशुनत साहब क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का कह रहे हैं? इस बालाखाने पर सिर्फ शम्मी ही नुमाया है। अगर मैं वहाँ जाने लगा तो फिर आपकी दाल नहीं गलेगी। इसका हुस्न और अदाएं तमाशबीनों से सिर्फ रुपया ऐंठने के लिए हैं। जिस तरह पैसे के जोर पर पहले दिन मैंने तमाम तमाशबीनों को खिसकने पर मजबूर कर दिया था, अब मेरे वहाँ जाने से आपको भी खिसकना पड़ेगा। इसलिए आप अकेले ही वहाँ जाकर अपनी तन्हाई दूर करते रहें और इस पे मुनासिब हद तक मेरा माली ताउन जारी रहेगा। आप मेरी ज़रूरत पूरी करें, मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँगा। और दूसरी बात ये, तवाइफ के कोठे से अरबों रुपए लुटाने वाले भी पैसा ख़त्म होने पर जलील और रुस्वा करके निकाल दिए जाते हैं। इसलिए अपना पैसा होशो हवास में रहकर और हाथ खींच कर खर्च करें। खर्च कम करें लेकिन जाहिर ये करें कि आपके पास बहुत दौलत है। इस तरह तवाइफें भूखी बिल्ली की तरह आपके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहेंगी। यशवंत खामोशी से मेरी बात सुन रहा था, लेकिन इसके चेहरे से साफ आया था कि बुढ़ापे के इस इश्क से बचना इसके बस में नहीं था, इसके बस में नहीं रहा। और मैं चाहता भी यही था कि शम्मी की वजह से यशुनत हमारी हर ज़रूरत पूरी करने पर मजबूर है। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, वैसे यशुनत साहब आपकी पसंद भी लाखों में एक और लाजवाब है। शम्मी पर तो दिलो जां ही नहीं, दोनों जहां भी निछावर करने पड़े तो सौदा महंगा नहीं। यशुनत खिल उठा और कहने लगा, विनोद भाई, अब तो ये भगवान के और आपके हाथ में है कि मैं शम्मी को हासिल कर सकूं। कल की डाक आपको कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, कोई खास नहीं, मामूल की डाक से एक दर्जा ऊपर थी। हालांकि ये बहुत ही अहम डाक थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स के एक खत के जरिए भारत के नंबर 7 और नंबर 10 डिवीजन कमांडरों को मुतल्ला किया गया था कि सिख लाइट इन्फेंट्री की तमाम रेजिमेंटों को, जिनकी नफरी 35,000 से ज़्यादा थी, एक माह के अंदर इन डिवीजनों से हटाकर तरीपुरा में मुकीम जाट रेजिमेंटों
نفری تقریباً 30,000 کی جگہ تعینات کیا جائے۔ بھارت کے نمبر 7 اور نمبر 10 ڈویژن پاکستانی سرحد کے قریب تعینات تھے۔ یشونت کہنے لگا، اب جب کہ میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو میں انتہا تک جانے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کرتے جائیں، میں تعمیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ ایپیسوڈ 16 اختتام پذیر ہوئی۔